हेलो स्टूडेंट्स। आज ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ चैप्टर नंबर 12 न्यू चैप्टर ਕੀ स्टार्ट करना चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ इलैक्ट्रिसिटी। ठीक है, ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਡਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਮ ਸਕੂਲਸ ਕਿਚਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਵਾਟ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਇਟ ਫਲੋ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਿਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਿਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਆਨਸਰ ਸੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਯੂਜ਼ਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਸਰਕਿਟ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਰ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਵਿਦ ਦੀ ਏਅਰ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਦੀ ਵਾਟਰ ਕਰੰਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਏਅਰ ਕਰੰਟ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕਰੰਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵਿੰਡ ਮਿਲਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਕਰੰਟ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਦੀ ਫਲੋਇੰਗ ਆਫ ਵਾਟਰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ ਦੀ ਵਾਟਰ ਕਰੰਟ ਇਨ ਰਿਵਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਫ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਫਲੋਜ਼ ਥਰੂ ਅ ਕਰੰਟ ਕੰਡਕਟਰ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਕੀ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਵੀ ਸੇ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਇਨ ਦ ਕੰਡਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫॉर एग्जांपल ਇਨ ਅ ਟਾਰਚ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਦੀ ਸੈਲਸ ਔਰ ਅ ਬੈਟਰੀ ਵੈਨ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜਸ ਔਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਥਰੂ ਦੀ ਟਾਰਚ ਬਲਬ ਟੂ ਗਲੋ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਟਾਰਚ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਟਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੈੱਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਸੈੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਚ ਬਲਬ ਆ ਉਹ ਕੀ ਗਲੋ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਗਲੋ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਚ ਬਲਬ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਲਬ ਗਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਵਿਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਸਵਿਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਸੀਨ ਦੈਟ ਦੀ ਟਾਰਚ ਗਿਵਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਵਿਚ ਔਨ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਈਟ ਦੇਊਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਿਚ ਔਨ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਵਟ ਡਜ਼ ਅ ਸਵਿਚ ਡੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਵਿਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਸਵਿਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਵਿਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਵਿਚ ਮੇਕਸ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਲਿੰਕ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਸੈੱਲ ਐਂਡ ਦੀ ਬਲਬ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਟਰਮੀਨਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਰਕਿਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਬਲਬ ਹੈ। ਬਲਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸਰਕਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜਸ ਕੀ ਫਲੋ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਵਿਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸਵਿਚ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਸਵਿਚ ਔਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਡਾਟ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਿ ਸੌਰੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸਵਿਚ ਆਫ। ਇਹ ਕੀ ਸਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਰਕਿਟ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਿਟ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਬਲਬ ਗਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਿ ਡਾਟ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸਵਿਚ ਔਨ। ਇਹ ਕਿ ਸਵਿਚ ਔਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਵਿਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਸਵਿਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਂਦੀ है सैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੱਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਿੰਕ ਕਰ ਬਣਾਉਂਦੀ है। ठीक है, अगर की स्विच की है ऑन मतलब कि स्विच ऑफ होगी तो मतलब इत्थे की सर्किट कंप्लीट नहीं हैगा। ठीक है, तो इत्थे की अगर डॉट नहीं होगा इस तरह का होगा, अगर सर्किट अपना कंप्लीट नहीं हैगा, सर्किट जॉइन नहीं हैगा, सर्किट ही जॉइन नहीं हैगा तो उत्थे की करंट फ्लो नहीं करूगा, करंट फ्लो नहीं करूगा तो बल्ब की करूगा, ग्लो नहीं करूगा। अगर आप इसनूं की डॉट लगा के कि एक सर्किट की कंप्लीट कर देंगे तो उत्थे की चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा तो जिहड़ा टॉर्च बल्ब है वो की करूगा, ग्लो करूगा। ठीक है, देखो अ स्विच मेक्स द कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। ठीक है, कंटीन्यूअस एंड द क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलैक्ट्रिक करंट, ये जिहड़ा हुण आपां कि स्विच ऑफ ऑन करन तो बाद ठीक है सर्किट के कंप्लीट हो गया, उन्हें की कंटीन्यूअस द क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलैक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड द इलैक्ट्रिक सर्किट। हुण इस नूं आपां की कहांगे इलैक्ट्रिक सर्किट, क्योंकि एक ये कंटीन्यूअस है। देखो एक ये कंटीन्यूअस हो गया, हुण इत्थों की चार्ज के फ्लो करी चलूगा। ठीक है, चार्ज फ्लो हो ही गया, चार्ज फ्लो हो ही जा रहा है तो बल्ब की ग्लो करी जा रहा है, बल्ब ग्लो करी जा रहा है, कंटीन्यूअस है। देखिए क्लोज्ड पाथ हो गया, कंटीन्यूअस ते क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलैक्ट्रिक करंट उन्होंने आपां की कहांगे इलैक्ट्रिक सर्किट, उन्होंने आपां की कहनी है इलैक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर, जे हुण आपां की सर्किट नूं की ब्रोक कर देंगे इत्थों मतलब कि स्विच की ऑफ कर देंगे। ठीक है, इफ द करंट इज ब्रोकन एनीवेयर और स्विच ऑफ कर देंगे तो करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, चार्जेस के फ्लो करना क्या स्टॉप कर देंगे, करंट फ्लो करना स्टॉप हो जाएगा एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो, तो बल्ब की ग्लो नहीं करूँगा। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल है इलैक्ट्रिक करंट इलैक्ट्रिक चार्जेस किवें फ्लो करते हैं तो स्विच का की काम है। ठीक है, ये आप इस पैराग्राफ के पढ़िया। हुण आप देखांगे कि हाउ डू वी एक्सप्रैस द इलैक्ट्रिक करंट। हुण इलैक्ट्रिक करंट बारे तो आप पढ़ लिया, हुण इहनूं एक्सप्रैस किद्दां करांगे वो देखना आप। ठीक है, इलैक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रैसड बाय द अमाउंट ऑफ अ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। देखो इलैक्ट्रिक करंट की है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਰजेस फ्लो करनगे, ਆਪਾਂ देखिया सी इलैक्ट्रिक करंट की है द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर, फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। तो आप की देखेंगे इलैक्ट्रिक करंट नूं किवें एक्सप्रैस करांगे द अमाउंट ऑफ चार्ज कि कितना अमाउंट है जिहड़ा उस किन्नी अमाउंट ऑफ चार्जेस है जिहड़े इस पर्टिकुलर एरिया दे विच की कर रहे फ्लो कर रहे तो किन्ने टाइम दे विच फ्लो कर रहे। ठीक है, उसनूं आपां की कहांगे इलैक्ट्रिक करंट। इलैक्ट्रिक करंट नूं किवें एक्सप्रैस करांगे द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। हुण इन्ना की एरिया इस दे विचों किन्ने अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो हो रहे ते किन्ने टाइम दे विच फ्लो हो रहे, उन्होंने आपां की कहांगे इलैक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलैक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रैसड बाय द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम, किन्ने टाइम दे विच। ठीक है, इसनूं आपां की अदर वर्ड्स दे विच एक्सप्रैस कर सकते इन इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलैक्ट्रिक चार्जेस। रेट भी उही होगी कि किन्ने टाइम दे विच किन्ना चार्ज फ्लो कर रहे, उसनूं आपां की कहांगे इलैक्ट्रिक करंट। In this circuit, using the metallic wire, the electron constitute the flow of charges। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ है कि मैटैलिक वायर है, मैटैलिक वायर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ इलैक्ट्रॉन्स ने ਜਿਹੜੇ फ्लो करते हैं। ठीक है, however the electrons were not known at the time when the phenomena of electricity was first observed। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ऑब्जर्व ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ठीक है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ बट सो द इलैक्ट्रिक करंट फिर वो की देखते सी कि इलैक्ट्रिक करंट नूं किवें देखदे सी जदों उन्हां नूं इलैक्ट्रॉन बारे नहीं सी पता। सो द इलैक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस and the direction of flow of positive charge was taken to be the direction of the electric current। फिर वो की करते सी, वो कंसिडर करते सी कि जिस साइड की है पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उस डायरैक्शन दे विच की इलैक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, उस टाइम तो उन्होंने इलैक्ट्रॉन्स बारे नहीं पता सी तो उन्होंने की कंसिडर किया कि जिस डायरैक्शन दे विच कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उस डायरैक्शन दे विच कि इलैक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, उस डायरैक्शन दे विच की है इलैक्ट्रिक करंट की है जा रहा है। ठीक है, जिस डायरैक्शन दे विच पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। कन्वेंशनली फर्दर फिर उन्होंने की स्टडी की तो फिर उन्होंने की कहा
In an electric circuit, the direction of electric current is taken as the opposite to the direction of flow of electrons which are negative charges. फिर उन्होंने की किया जो कि अगे फर्दर उन्होंने स्टडी की तो उन्होंने देखा कि जिस साइड ते की है इस साइड ते मान लो कि इलैक्ट्रिक करंट की फ्लो कर रही है तो उस दे ओपोजिट ने जिहड़े वो कि इलैक्ट्रॉन्स फ्लो करनगे जिस साइड ते कि इलैक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हैं इलैक्ट्रिक करंट नूं आई दे नाल डिनोट करांगे जिस साइड ते कि जिस डायरैक्शन दे विच इलैक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हैं उस दे ओपोजिट जिहड़े फ्लो की करनगे इलैक्ट्रॉन्स फ्लो करनगे उस दे ओपोजिट ठीक है यही क्या इन एन इलैक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक करंट इज टेकन डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव चार्जिस इलैक्ट्रॉन्स के उपर क्या नेगेटिव चार्जिस होंगे पॉजिटिव चार्जिस जिहड़े ने वो क्या उन्होंने उपर क्या पॉजिटिव चार्ज होगा ठीक है तो की देखिया आपां कि जिस डायरेक्शन दे विच ਜਾਂ ਕੀ है जिहड़ा इलैक्ट्रिक करंट आ वो की होगा ओपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ठीक है डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स अगर इलैक्ट्रॉन्स के इस डायरेक्शन दे विच फ्लो कर रहे तो इलैक्ट्रिक करंट के उसके अपोजिट फ्लो करूगा ठीक है तो पॉजिटिव चार्ज के उस डायरेक्शन दे विच फ्लो करनगे जिस डायरेक्शन दे विच के इलैक्ट्रिक करंट फ्लो करूगा ठीक है इन्हें तुहानूं समझ लग गया नैक्सट है जिहड़ा आपां पढ़ांगे देखो हुण आपां कि इलैक्ट्रिक करंट बारे पढ़िया सी ठीक है इलैक्ट्रिक करंट पढ़िया सी इलैक्ट्रिक करंट की सी जिस किस किवें एक्सप्रैस करदे सी द अमाउंट ऑफ चार्जिस फ्लो थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम देखो उही चीज़ है इहदे विच हुण इत्थे की इलैक्ट्रिक करंट देखो यही आपां डेफिनेशन पढ़ी सी इलैक्ट्रिक करंट दी इलैक्ट्रिक करंट एक्सप्रैशन जिहड़ा पढ़िया सी इलैक्ट्रिक करंट दा द अमाउंट ऑफ चार्जिस फ्लो थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम यही आपां पढ़िया सी ठीक है हुण इत्थे इलैक्ट्रिक करंट नूं आपां की एक्सप्रैस करांगे आई दे नाल इलैक्ट्रिक करंट नूं आपां किहदे नाल डिनोट करांगे आई दे नाल ठीक है ते अमाउंट ऑफ चार्जिस नूं की करांगे क्यू दे नाल डिनोट करांगे ते टाइम नूं टी दे नाल डिनोट करांगे ठीक है एक ये फॉर्मूला बन गया इलैक्ट्रिक करंट दा वही चीज़ है इलैक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रैस्ड by the amount of charges flow through a particular area in a unit time or in other words it is the rate of flow of charges इनू की कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जिस ठीक है यही है हुण देखो हुण अगे की है जिहड़ा करंट है जिहड़ा उन्होंने आपां हमेशा की है एक यूनिट दे विच किहड़ी करंट है जिहड़ा मेजर किया जाता है एम्पीयर दे विच ठीक है करंट इज एक्सप्रैस्ड बाय द यूनिट एम्पीयर करंट नूं की एम्पीयर दे विच की है एक्सप्रैस किया जाता ठीक है एम्पीयर जिन्हों आप की करते हैं ए दे नाल डिनोट करते हैं ठीक है जिन्हों आप की ए दे नाल डिनोट करते हैं तो जिहड़े चार्जिस है उन्होंने आप डिनोट करांगे कूलम्स उन्होंने आप डिनोट करांगे कूलम्स दे विच ठीक है कूलम्स नूं की है सी दे नाल डिनोट करांगे ठीक है टी है जिहड़ा उन्होंने हमेशा आप सैकेंड्स दे विच मेजर करना ठीक है सैकेंड्स दे विच जिन्हों आप एस दे नाल डिनोट करांगे ठीक है हुण देखो आई क्यू ते टी हुण इत्थे की है यूनिट रख दो ए 1 एम्पीयर 1 कूलम सी दे नाल डिनोट करांगे ते 1 सैकेंड ठीक है ये है तो 1 एम्पीयर की दे बराबर हो गया कूलम ये सैकेंड नूं के उपर जो लैके जावांगे रिवर्स दे विच चला जाऊगा तो की होगा ये जिहड़ा होगा 1 एम्पीयर की डेफिनेशन की होगी देखो 1 एम्पीयर की डेफिनेशन की है द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्जेस इन अ यूनिट टाइम और इन अ 1 सेकेंड ठीक है एम्पीयर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द 1 कूलम ऑफ चार्जेस in per second
ठीक है, पर सैकेंड दे विच किन्ने 1 कूलम चार्जेस फ्लो हो रहे तो उन्होंने आप की कहांगे एम्पीयर। ठीक है, यही है तो यदी यूनिट की होगी एम्पीयर दी कूलम पर सैकेंड। ठीक है, याद रखना। देखो यही चीज़ इन्होंने कहा है, इफ़ अ नैट चार्ज क्यू, अगर कि नैट चार्ज क्यू उत्थे की फ्लो कर रहा है, फ्लो अक्रॉस अ क्रॉस सैक्शनल ऑफ अ कंडक्टर। क्रॉस सैक्शनल की है मतलब कि पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, एक वाला जो क्रॉस सैक्शनल दे विच जिहड़ा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है इन्ने टाइम टी टाइम दे विच, तां उहनूं किवें एक्सप्रैस करांगे आपां आई क्यू बाई टी। एस आई यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक चार्जिस कूलम। इलैक्ट्रिक चार्जिस दी की है एस आई यूनिट की है कूलम, जिहड़ी की है 1 कूलम है जिहड़ा, देखो 1 कूलम है जिहड़ा वो 1.6 इंटू 10⁻18 इलैक्ट्रॉन के बराबर है। 18 इलैक्ट्रॉन के बराबर है। तो जिहड़ा एक इलैक्ट्रॉन है, एक इलैक्ट्रॉन का चार्ज है जिहड़ा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर है। ठीक है, 1 कूलम की जिहड़ी 1 कूलम इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻18 इलैक्ट्रॉन। 1 कूलम दे विच की किन्ने इलैक्ट्रॉन होंदे, इन्ने इलैक्ट्रॉन होंदे ते एक इलैक्ट्रॉन दे विच इन्ने की कूलम्स, इन्ने चार्जिस होंदे। एक इलैक्ट्रॉन का जिहड़ा चार्ज है वो की है इन्ना होंदा। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, यही चीज़ है। विच इज़ इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन नियरली दिस, वी नो दैट एन इलैक्ट्रिक प्रोसेसिस द नेगेटिव चार्ज, तो वह की है एक इलैक्ट्रॉन है जोड़े ये बराबर होगा। ठीक है, इलैक्ट्रिक करंट इज़ एक्सप्रैसड बाय अ यूनिट एम्पीयर। नहीं आप देखिए कि इलैक्ट्रिक करंट मीनस आई है जोड़ा उन्होंने आप इज़ एक्सप्रैसड बाय यूनिट, उहदी यूनिट की है एम्पीयर है। एम्पीयर है जी की फ्रेंच साइंटिस्ट के नाम तो कि ਇਹਦਾ नाम बनया, वो किहड़ा साइंटिस्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड्रे मैरी एम्पीयर के नाम तो की है एम्पीयर यूनिट सिंबल के डिनोट किया गया। ठीक है, 1 एम्पीयर हुण आपां देखिया सी कि 1 एम्पीयर है जिहड़ा उहदी डेफिनेशन की है, 1 एम्पीयर इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सैकेंड। एक सैकेंड दे विच 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा तो उन्होंने आपां की कहांगे 1 एम्पीयर। ठीक है, ये वाला स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ अ करंट एक्सप्रैसड इन मिली एम्पीयर। देखो ये तक ये एम्पीयर हो गया, हुण मिली एम्पीयर की इस तो क्या छोटी यूनिट होगी, तो मिली, मिली नूं आपां डिनोट करांगे 10⁻⁻3। एक मिली दे विच की हुंदे 1000। देखो एक मिली एम्पीयर तो की होगा एक मिली, मिली नूं आपां की है 1/1000 एम्पीयर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनू की कहांगे आप जो 1000 है 3 नहीं तो 3 नूं उपर लेके जावांगे तो कितना हो जाएगी, तो 1 मिली एम्पीयर इज़ इक्वल टू 10⁻⁻3 एम्पीयर दे होगा। तो इस तो छोटी यूनिट की है माइक्रो एम्पीयर। हुण एक माइक्रोन जिहड़ा हुंदा है वो किहदे बराबर हुंदा है 10⁻⁻6 एम्पीयर के बराबर। ठीक है, यूनिट है तुसीं याद रखनी है 1 एम्पीयर तो की है 1 मिली एम्पीयर तो 1 माइक्रोन एम्पीयर। ठीक है, याद रखनी है तुसीं यूनिट। हाँ जी, एन इंस्ट्रूमेंट, हुण जिहड़ा ये एम्पीयर है वो किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा की मेजर किया जाता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम की है एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द एमीटर मेजर्स द इलैक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। उसका नाम की एमीटर। एमीटर द्वारा की एम्पीयर मतलब करंट नूं की मेजर कितना करंट उहदे विचों फ्लो हो रहा वो किहड़े इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर किया जाता है, एमीटर। ठीक है, एमीटर इज़ कनैक्टेड। हुण ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एमीटर नूं हमेशा की कनैक्ट किया जाता है सीरीज़ दे विच। ठीक है, सीरीज़ दे विच की कनैक्ट किया जाता है। इट इज़ ऑलवेज कनैक्टेड इन अ सीरीज़ इन अ सर्किट थ्रू विच द करंट इज़ टू बी मेजर्ड। देखो यही आपां करंट का की सर्किट डायग्राम है जी कि ये है, एक है बैटरी, बैटरी नूं आपां की इस तरह डिनोट करांगे, ये जिहड़ा वड्डे वाला डंडा होगा उन्होंने की है पॉजिटिव टर्मिनल, छोटे वाला की है नैगेटिव टर्मिनल, तो जिहड़ा करंट है जिहड़ा फ्लो कर रहा है इस तरह। एक है बल्ब, बल्ब नूं रिप्रजेंट करते, एक है एमीटर तो एक है स्विच, एक है स्विच है। ठीक है, हुण इत्थे की है जिहड़ा एमीटर उन्होंने सीरीज़ दे विच कनैक्ट किया जाता है। सीरीज़ मीनस की है जिस, देखो एक ही सीरीज़ होंगी है, सीरीज़ तो अपन पता है कि इस तरह की है, एक है अगर इत्थे है कोई पॉइंट इत्थे है तो आप कहने हैं सारे पॉइंट्स की एक सीरीज़ दे विच है।
ठीक है। इस तरह है कि करंट नूं जदों आपां ये वाली जिहड़ी सर्किट डायग्राम नूं जदों कि ओपन करांगे, हुण सारी नूं कि खोल देवांगे तो ये सारी कि एक सीरीज़ एक लाइन दे विच आ जाणगे, ठीक है। एमीटर नूं की है एक सीरीज़ दे विच कनैक्ट किया जाता है, ठीक है, याद रखना। हुण इस फिगर दे विच की है जिहड़ा करंट है, हुण इस फिगर दे विच की डिनोट किया गया, डायग्राम ऑफ अ टिपिकल इलैक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजेज अ सैल, एक ये सैल कह सकते हैं, बैटरी कह सकते हैं, ठीक है। इलैक्ट्रिक बल्ब, एक ये बल्ब है, एमीटर तो एक ये प्लग की, ठीक है, एक ये प्लग की है। नोट दैट इस दे विच आपां नोट करांगे तो इलैक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सैल टू द नैगेटिव टर्मिनल ऑफ द सैल थ्रू अ बल्ब एंड द एमीटर। हुण देखो पॉजिटिव करंट जिस तरह जिस साइड ते पॉजिटिव करंट फ्लो करूगा उसी डायरैक्शन दे विच के इलैक्ट्रिक करंट फ्लो करूगा। हुण पॉजिटिव चार्जिस कित्थों होणगे, पॉजिटिव चार्जिस किवें फ्लो करनगे, फ्रॉम पॉजिटिव टू नैगेटिव टर्मिनल फ्लो करनगे तो उसी डायरैक्शन दे विच के करंट फ्लो करूगा। हुण जिस डायरैक्शन दे विच करंट फ्लो कर रहा है उस दे ओपोजिट के इलैक्ट्रॉन, अगर करंट की इस डायरैक्शन दे विच फ्लो कर रहा है तो इलैक्ट्रॉन्स ने जिहड़े ओके इस डायरैक्शन दे विच के फ्लो करनगे, ठीक। यही है द इलैक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम अ पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू अ बल्ब एंड की एमीटर, ठीक है। नहीं तुहानूं की एक की न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल दे विच की है करंट 0.5 एम्पीयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ अ इलैक्ट्रिक करंट फॉर अ 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू अ सर्किट। देखो ये की तुहानूं करंट दिता है, एम्पीयर तो पता लग जूगा, अगर एम्पीयर है इहदी यूनिट अगर नहीं पता चल रहा, वैसे तो ऊँ ही पता चल रहा है कि करंट है, करंट किन्ने एम्पीयर इन्ना, एम्पीयर तो पता चल जूगा कि आई दी वैल्यू है, ये आई दी वैल्यू है। टाइम वैसे ही आपां नूं पता मिनट्स दे विच दिता होया, तो मिनट्स दे विच जिहड़ा दिता होगा टाइम उहनूं आपां की सैकेंड्स दे विच चेंज करांगे, पहला मिनट्स नूं की सैकेंड्स दे विच चेंज करांगे तो की होगा 1 मिनट दे विच किन्ने हुंदे 60 सैकेंड हुंदे तो किन्ना हो जाऊगा 600 सैकेंड्स। हुण इत्थे आपां की अमाउंट ऑफ इलैक्ट्रिक चार्जिस की क्यों पता करना है, तो देखो अपना जिहड़ा फॉर्मूला सी क्यू ओवर टी, तो हुण आपां की आपां नूं आई दिता होया टी दिता होया क्यों पता करना है, तो ये इधर जाके कि इक्वल टू अगर डिवाइड दे विच है तो इक्वल टू ओपोजिट साइड ते जाऊगा तो की हो जाऊगा मल्टीप्लाई दे विच हो जाऊगा, ठीक है। तो हुण आपां नूं की है करंट दिता होया 0.5 एम्पीयर, ठीक है, तो ये टाइम कितना दिता होया 10 मिनट्स दिता सी टाइम। हुण मिनट्स नूं आपां की सैकेंड्स दे विच चेंज करांगे तो 1 मिनट दे विच किन्ने हुंदे 60 सैकेंड हुंदे, तो इत्थे की कर देंगे 60 सैकेंड, तो टोटल कितना हो जाएगा 600 सैकेंड्स। तो हम टाइम दी क्या इत्थे 600 सैकेंड्स, ठीक है। हुण ये की हो जाएगा 0.5 कट्टा जाऊगा तो कितना हो जाएगा 300 एम्पीयर सैकेंड। तो एम्पीयर सैकेंड है जिहड़ा वो की हुंदा है उहदी यूनिट की हुंदी है चार्ज की यूनिट की हुंदी है कूलम्स, तो उन्होंने क्या सी, तो ये कितना आ जाऊगा 300 कूलम, इहदा की आ जाऊगा आंसर, ठीक है। यही दिता है। हुण तुहाडे के क्वेश्चनस की है व्हाट डज एन इलैक्ट्रिक सर्किट मीनस, हुणे आपां पढ़िया सी इलैक्ट्रिक सर्किट की हुंदा, सर्किट की हुंदा कंटीन्यूअस एंड द क्लोज्ड पाथ, की सी इलैक्ट्रिक सर्किट की सी ये वाला सी इलैक्ट्रिक सर्किट कंटीन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलैक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड दी इलैक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। एक ये इलैक्ट्रिक सर्किट है, उत्थे तुसीं सर्किट की डायग्राम बना के शो करनी है, ठीक है। अगर तुहानूं इलैक्ट्रिक सर्किट पूछा तो उहदी पहला तुसीं डेफिनेशन दोगे कंटीन्यूअस एंड क्लोज्ड सर्किट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट, क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलैक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड दी इलैक्ट्रिक सर्किट, फिर उत्थे तुसीं किस सर्किट की डायग्राम बनाओगे, ठीक है। नैक्सट है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, हुण करंट की यूनिट की है एम्पीयर, तो एम्पीयर नूं आपां किवें डिफाइन करदे सी 1 एम्पीयर is equal to 1 ampere is constituted by the flow of 1 coulomb charge per second, एक सैकेंड दे विच जिन्नी अमाउंट ऑफ चार्जिस की फ्लो कर रहे हैं उन्होंने आप की कहने हैं 1 एम्पीयर, ठीक है। नैक्सट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज,
ਹੁਣ 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ 1.6 × 10⁻1 ਕੂਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ 1 ਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਦੇਖਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ 1 ਕੂਲਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਲਾਸਟ क्वेश्चन की है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग द 1 कूलम ऑफ चार्ज। हुण 1 कूलम चार्ज दे विच किन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन और चैक करना आपां, ठीक है। देखो आपां के उपर पढ़िया सी कि एक इलैक्ट्रॉन्स दे विच किन्ने चार्जेस हुंदे आ 1.6 × 10⁻⁻19 चार्ज हुंदा है एक इलैक्ट्रॉन दे उपर, ठीक है, इन्ने कूलम होंगे। हुण आपां क्या नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पता करने हैं, तो नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन पता करने लई आपां नूं की चाहिदा है, ठीक है, टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा, ठीक है, चार्ज ऑन 1 इलैक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलैक्ट्रॉन, एक इलैक्ट्रॉन के उपर कितना चार्ज है, ठीक है। नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन की है टोटल चार्ज, हम टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है 1 कूलम, तो एक इलैक्ट्रॉन का आपां हुणे पढ़िया, एक इलैक्ट्रॉन के उपर किंदे आ 1.6 × 10⁻19 कूलम। हुण कूलम नाल कूलम की कैंसल हो जाऊगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाऊ 1/6। हुण आ जिहड़ा 19 है इनू आपां की उपर लै जाएंगे तो क्या पॉजिटिव, क्योंकि नैगेटिव है उपर लैके जावांगे तो पॉजिटिव च हो जाऊगा, ठीक है। तो हुण जदों आपां इनू सॉल्व करांगे तो सारे नू पूरे टोटल नू सॉल्व करांगे तो अपने कोल की एप्रोक्स वैल्यू जिहड़ी आ जाऊगी 6.25 × 10⁻18, ठीक है। तो इन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स होणगे, ठीक है, एक कूलम दे विच, एक कूलम दे विच किन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स होणगे, इन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इत्थों आपां नूं की पता चल गया, ठीक है, इसलिए आपां कहने 1 कूलम = 6 × 10⁻18 इलैक्ट्रॉन, ठीक है। तुसीं वैल्यू के उपर पढ़ी सी तुहाडी बुक दे विच, ठीक है जी। अज लई इन्ना ही, कल नूं आपां की करांगे पोटैंशियल, इलैक्ट्रिक पोटैंशियल ते पोटैंशियल डिफरेंस बारे पढ़ांगे, ठीक है जी। थैंक यू।